ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਡ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ MCQ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਰ ਡੈਰ ਲੇਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ 24 ਔਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੀਟਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਲਸ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਚਾਰਲਸ ਮਾਈਕਲ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਰ ਡੈਰ ਲੈਨ। ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਰੋਬਰਟਾ ਮੈਟਸੋਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 30 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ। 30 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ USA ਬੇਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲੀਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 3 ਵੀਲਰ ਫੈਕਟਰੀ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 3 ਵੀਲਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਏਗੀ? ਬਿਲੀਟੀ ਲਗਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ which of the following has partnered with internet exchange point service? Which of the following has partnered with internet exchange point Extreme 9?
इस दे नाल एग्रीमेंट साइन किया गया फास्टर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के लिए, फास्टर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के लिए किसने किया? फोनपे ने एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है जी, इस एग्रीमेंट नू किस द्वारा साइन किया गया? फोनपे द्वारा साइन किया गया। नेक्स्ट है अब्दरा बुआ मंसूर हाइदी। आप कल के सैशन के डिस्कस किया कि यह प्रेजिडेंट से किसी कंट्री के, इन्होंने रिजाइन किया, इन्होंने रिजाइन किया किस कंट्री के प्रेजिडेंट सी? यमन। यमन के प्रेजिडेंट से अब्दरा बुआ मंसूर हादी। अब्दरा बुआ मंसूर हादी किस कंट्री के प्रेजिडेंट सी और इन्होंने रेजिग्नेशन दिता है यमन। यमन कैपिटल हाइती है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रिकॉन्स्टिट्यूट्स एक्सपर्ट कमेटी फॉर दिल्ली देहरादून। दिल्ली देहरादून कॉरीडोर प्रोजेक्ट के लिए, दिल्ली देहरादून कॉरीडोर प्रोजेक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, एक कमेटी बनाई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ किसकी? चेयरमैनशिप के अंडर। इस कमेटी नू बनाया गया है CP गोयल की चेयरमैनशिप के अंडर। बेसिकली कहांगे डायरैक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, डायरैक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट की चेयरमैनशिप के अंडर बनाया गया। करंट डायरैक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट CP गोयल ने, CP गोयल ने, इस करके इन्हों हैड बनाया गया। ठीक है जी, याद रखा। इस तो इलावा बाकी 3 नाम न्यूज़ के डिस्कस किए सी, आपाने दोबारा रिवाइज करांगे। सब तो पहले विप्रो लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड दे सत्य ऐश्वरन इंडिया हैड बनाए गए हैं। विप्रो लिमिटेड सत्य ऐश्वरन इंडिया हेड। भारत पे ने स्मृति हांडा नू चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर अपॉइंट किया। भारत पे ने स्मृति हांडा नू चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर अपॉइंट किया। ठीक है जी, भारत पे 2018 के विच बनाया गया सी। दिल्ली के विच हैडक्वार्टर है। सुहेल समीर इज द हेड। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन 12th एडिशन ऑफ सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप इन भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश दे विच किसने, केड़ी स्टेट ने सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है? सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है भोपाल मध्य प्रदेश दे विच। भोपाल मध्य प्रदेश दे भी जीती गई है हरियाणा द्वारा। हरियाणा द्वारा तमिलनाडु नू हरा के इस ट्रॉफी नू जितया गया। हरियाणा द्वारा तमिलनाडु नू हरा के इस ट्रॉफी नू जितया गया। नैक्सट चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ दे। अज दे सैशन दे विच भी काफ़ी इंटरस्टिंग न्यूज़ ने अपने लवे। डिटेल्ड फॉर्म दे विच डिस्कस करांगे। सैशन नू लाइक और शेयर ज़रूर कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो। काफ़ी घट बच्चे सैशन नू शेयर करते हैं। जिथे भी तुसी जुड़े हुए हो अपने फ्रेंड्स के नाल सैशन नू शेयर करना स्टार्ट कर। ठीक है जी, थोड़े व्यूज़ ही एक परसन की मोटिवेशन होंगी है, एक टीचर की मोटिवेशन होंगी है कि तुहानू होर भी ज़्यादा मेहनत नाल पढ़ावे। ठीक है, एक ये 25 तो 30 मिनट के सैशन नू क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए तकरीबन 5 घंटे लगते हैं, जिस दे विच डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के विचों न्यूज़ इकट्ठी की जांदियां ने। डिफरेंट एप्लीकेशन या सोर्सिस तो न्यूज़ इकट्ठियां की जांदियां ने। उन्होंने इकट्ठा करने तो बाद डिटेल बनाई जाती है उन्होंने, उसनू PPT के विच कन्वर्ट किया जाता है और उस तो बाद सानू पढ़ाने के लिए क्लास बनाई जाती है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा और हैक्टिक प्रोसैस है, फिर भी थोड़ी स्टडी के लिए सानू काफ़ी लैस कॉस्ट से या कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट से सानू क्लासेस प्रोवाइड करवाने के लिए सारी मेहनत की जाती है। तो सैशन नू लाइक और शेयर इन्ना हक जरूर बनता है एक टीचर का, काइंडली शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं अज दी न्यूज़ के नाल। फर्स्ट न्यूज़ है इंपोर्टेंट डेज़ दे विचों। इंपोर्टेंट डेज़ दे विच नैशनल सिविल सर्विसिज डे आपां डिस्कस किया कि एक स्कीम थी उड़ान स्कीम।
ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡੇ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡੇ ਕਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 21 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਚਾਰਲਸ ਕੌਨਵਾਲਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਮੇਜਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਡੇ 21 ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਡੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇसी ਦਿਨ ਇਸ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਆ ਗਏ, IPS ਆ ਗਏ ਜਾਂ IFS ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? UPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਬਜ਼ਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट सुनील कुमार, अर्जुन हालाकुर्की और नीरज। स्पोर्ट्स न्यूज़ दे विचों कुछ न्यूज़ है। सुनील कुमार, अर्जुन हालाकुर्की और नीरज 3 स्पोर्ट्स परसन ने जिन्हों ने ब्रॉन्ज मैडल जिते इंडिया के लिए, ब्रॉन्ज मैडल जिते एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप दे विच, जो कि मंगोलिया दे विच ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है जी। याद होएगा कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी कि एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप मंगोलिया दे विच ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है। आई थिंक परसों के सैशन के ही आप डिस्कस किया सी एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप है जो कितने ऑर्गेनाइज की जा रही है? मंगोलिया दे विच। मंगोलिया कंट्री है, कैपिटल उलन बतूर है और उलन बतूर दे विच ही यह ईवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसी दे विच इंडियन स्पोर्ट्स परसन 3 इंडियन स्पोर्ट्स परसन ने ब्रॉन्ज मैडल जिते है। तिन्हां दा नाम इंपॉर्टेंट बने। नेक्स्ट इंडियन चैस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश चैस ग्रैंड मास्टर ने, चैस के प्लेयर ने, हैज़ वॉन 48th लारोड़ा इंटरनेशनल ओपन चैस टूरनामेंट। 48th लारोड़ा इंटरनेशनल ओपन चैस टूरनामेंट किथे? कैसल ला मंचा, स्पेन, बाय डिफीटिंग विक्टर माइकलएवस्की ऑफ इजराइल। जो इंडियन चैस ग्रैंड मास्टर ने, इंडिया के चैस प्लेयर ने डी गुकेश इन्होंने की कराया? इन्होंने एक चैस का टूरनामेंट जीते। चैस का टूरनामेंट है जो 48th एडिशन सीगा उसका स्पेन दे विच ऑर्गेनाइज किया गया और इजराइल के प्लेयर को हरा के, विक्टर नाम के प्लेयर को हरा के इन्होंने यह अवार्ड या यह टाइटल जीते। ठीक है जी। नेक्स्ट जसलीन कौली, अपॉइंटमेंट्स ने, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ने। जसलीन कौली MD CEO बनाए गए ने डिजिट इंश्योरेंस दे। डिजिट इंश्योरेंस एक कंपनी है जिसके MD CEO जसलीन कौली बनाए गए। जसलीन कौली
डिजिट इंश्योरेंस का हैडकुआटर बेंगलोर करनाटका दे विच है, बेंगलोर करनाटका दे विच है। और यह भी याद रखना है कि डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए ने विराट कोहली। डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन ने? विराट कोहली। ईजी हो जाएगा याद रखना कि कोहली कोहली बन गए ने, ठीक है। विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर और CEO की गल करते हैं तो जसलीन कोहली, ठीक है जी। नेक्स्ट है शांति सेठी। शांति सेठी इज अपॉइंटेड एज USA वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस डिफेंस एडवाइजर। अच्छा, कल के सैशन के भी USA के वाइस प्रेसिडेंट का नाम आप डिस्कस किया सी। क्यों न्यूज़ दे विच सी? क्योंकि तंजानिया दे फर्स्ट वूमेन प्रेसिडेंट ने जो इन्हां दी मुलाकात हुई सी, इन्हां दी मीटिंग हुई सी कमला हैरिस दे, ठीक है जी। कमला हैरिस दे डिफेंस एडवाइजर, USA के वाइस प्रेसिडेंट ने कमला हैरिस, इन्हां दे डिफेंस एडवाइजर इंडियन परसन को बनाया गया है, इंडियन ओरिजिन को बनाया गया है। नाम इंपॉर्टेंट बनेगा शांति सेठी। नेक्स्ट है एलन मस्क, टेस्ला के CEO या स्पेसएक्स के CEO भी कह सकते हैं। एलन मस्क इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्रेट लैसन्स यू कैन लर्न फ्रॉम। ग्रेट लैसन्स यू कैन लर्न फ्रॉम, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बने। इस तो इलावा रिसेंटली दो चीज़ां करके होर भी न्यूज़ दे विच सीगे। एक तो फोर्ब्स दी लिस्ट दे विच टॉप किया इन्होंने तो देश दे दुनिया के सब तो ज़्यादा अमीर आदमी बन चुके हैं एलन मस्क अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ फोर्ब्स। पहला पॉइंट। दूसरा कारण सी जो न्यूज़ के विच ये रहे, इन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए बिड की, ट्विटर को खरीदने के लिए अनाउंसमेंट की है कि यह ट्विटर को खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग के रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट न्यूज़। सब तो पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो इसने डिजिटल बैंक बनाने की अनाउंसमेंट की इन द बैंक एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटजी, कि अपने बैंक के विच ही एक डिजिटल बैंक अलग तो स्थापित किया जाएगा जो सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेगा ताकि बिजनेस स्ट्रैटजी को बढ़ाया जा सके, ठीक है जी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रिसेंटली किहड़े बैंक द्वारा अपने बैंक के विच ही डिजिटल बैंक बनाने की अनाउंसमेंट की गई, तो अपना आंसर रहेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1911 के विच बनाया गया सी, मुंबई के विच इसका हैडकुआटर। फिनो पेमेंट बैंक इसी तरीके नाल फिनो पेमेंट बैंक ये पेमेंट बैंक्स के विचों एक है। इंडिया के डिफरेंट पेमेंट बैंक्स ने इसने अप्रूवल मिली है, इसनों RBI द्वारा अप्रूवल दी गई है रेफरल सर्विसेज के लिए और FD और RD फिक्स्ड डिपॉजिट की सर्विस और रैकरिंग डिपॉजिट की सर्विसेज के लिए अप्रूवल दी गई है RBI द्वारा फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक 2017 के विच बनाया गया सी। नवी मुंबई के विच इसका हैडकुआटर है, नवी मुंबई के विच इसका हैडकुआटर है, ठीक है जी। और FD बारे हर एक ने सुना होगा। RD मतलब होंगे रैकरिंग पेमेंट्स। बेसिकली रैकरिंग डिपॉजिट यानी कि अगर आप कोई भी अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम बाद डिपॉजिट करवाने, फॉर एग्जांपल अपनी सैलरी होगी, ठीक है, किसी पर्सन की सैलरी है तो वह अगर पर्टिकुलर टाइम बाद आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 31 तरीक को आ जाती है या 1 तरीक को आती है, ठीक है, तो रैकरिंग डिपॉजिट है कि आए महीने सेम टाइम के उत्ते ये डिपॉजिट हो रहा, सेम अमाउंट डिपॉजिट हो रही है। नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स अलॉन्ग विद इंडियन एयरफोर्स ने नेवी के नाल मिल के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नू टेस्ट फायर किया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नू सुकोई 30 एयरक्राफ्ट द्वारा टेस्ट फायर की गई। सुकोई 30 एयरक्राफ्ट द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नू टेस्ट फायर किया गया, ठीक है जी। इतों कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्रह्मोस है जो ब्रह्मोस मिसाइल किस कंट्री की हेल्प के नाल बनाई गई सी। ब्रह्मोस मिसाइल की टैक्नोलॉजी रिसेंटली किस कंट्री को बेचने के लिए अनाउंसमेंट की गई सी, किस कंट्री के नाल शेयर करने की अनाउंसमेंट की गई सी, ठीक है जी। ये दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के दसो, ठीक है। रिसेंटली एक कंट्री को शेयर करने के लिए अनाउंसमेंट की गई सी, इंडिया शेयर करेगा, अरब कंट्री है इन्ना दस दिना। और दूसरा
किस कंट्री के नाल मिल के इसनूं डेवलप किया गया सी। एयरफोर्स और नेवी के फैक्ट इंपोर्टेंट बननगे। एयरफोर्स के हैड और नेवी के हैड, एयरफोर्स के हैड विवेक राम चौधरी ने, वी आर चौधरी, और इंडियन नेवी के हैड की गल करते हैं तो हरी कुमार, एम हरी कुमार। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ कंडक्टेड 8th एडिशन ऑफ नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, इसका नाम भी इसी तरीके नाल है। नैशनल का NAT, पॉल्यूशन का POL, रिस्पॉन्स का R और EX एक्सरसाइज। नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, इसका 8th एडिशन है। कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? गोवा दे विच, मारमुआ हार्बर, गोवा। ठीक है जी। इंडियन कोस्ट गार्ड के हैड की गल करते हैं KS पठानिया ने। इंडियन कोस्ट गार्ड 2 फरवरी को अपना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व कर। नेक्स्ट है लंडन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी लीडर नेक्सो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि लंडन का एक बैंक, एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है नेक्सो। नेक्सो नाम की क्रिप्टो करेंसी कंपनी है। इसने मास्टर कार्ड के नाल एग्रीमेंट साइन किया, मास्टर कार्ड के नाल पार्टनरशिप की है टू लॉन्च वर्ल्ड द फर्स्ट क्रिप्टो बेस्ड पेमेंट कार्ड। अपने डैबिट कार्ड्स होंगे ने, क्रैडिट कार्ड्स होंगे ने, इसी तरीके नाल क्रिप्टो करेंसीज दे विच पेमेंट करने के लिए नेक्सो कंपनी ने मास्टर कार्ड के नाल एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है जी। ये दोनों मिलके कार्ड डेवलप करनगे मास्टर कार्ड की हेल्प के नाल, ताकि करंसीज क्रिप्टो करेंसी नूं भी डैबिट क्रैडिट किया जा सके। ठीक है जी, या कह सकते हैं ट्रांसफर किया जा सके। मास्टर कार्ड की गल करते हैं। मास्टर कार्ड 1979 के विच बनाई गई कंपनी है, USA की कंपनी है, USA के विच हैडक्वार्टर है। और मिशेल मायबैक इज दे हैड। रिसेंटली मास्टर कार्ड के उत्ते रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई सी नवे कार्ड ना बनाते। इंदू सिंध बैंक 1994 के विच बनाया गया, मुंबई के विच हैडक्वार्टर है। इस बैंक नूं अवार्ड दिता गया कैलेंट मॉडल बैंक अवार्ड बेसिकली किसदे लई? क्लास एंटरप्राइजेज पेमेंट हब बनाने दे लई। ठीक है जी। सिंपली वन लाइनर दे विच याद रखांगे कि किस बैंक नूं कैलेंट मॉडल बैंक के अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया? इंडोसिंध बैंक। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द नेशन ऑन 400th प्रकाश पुरब ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, 9th सिख गुरु एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली ऑन 21 अप्रैल। कल दे दिन गुरु तेग बहादुर जी की अगर आप गल करिए, सिखा के 9वें गुरु, इन्हों की 400th बर्थ एनिवर्सरी सी ऑबजर्व की जानी सी। तो यह ऑबजर्व की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। इस दे विच एड्रैस किया गया रेड फोर्ट दिल्ली के विच फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। काफ़ी ग्रैंड फंक्शन सीगा, तुसीं गूगल के उत्ते इमेजिज देख सकते हो। काफ़ी ग्रैंड फंक्शन के नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी, या कहांगे कि प्रकाश पुरब ऑबजर्व किया। नेक्स्ट है इनविक्टस गेम्स 2022। इनविक्टस गेम्स 2022 ने जिहड़े ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं हेग नीदरलैंड दे विच। इनविक्टस गेम्स बेसिकली पैरा गेम्स के तरीके नाल होंदे ने। पैरालंपिक की गल सुनी होगी तुसीं। ठीक है, जिस तरीके नाल पैरालंपिक्स होंदे ने, जो पैरा एथलीट्स इस दे विच पार्टिसिपेट करते हैं, इनविक्टियस गेम्स दे विच ओह स्पोर्ट्स परसन पार्टिसिपेट करते हैं जो कि आर्मी के नाल रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने वॉर दे विच, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, वॉर दे विच जिहड़े हैंडीकैप्ड होए होंगे। ठीक है, वह स्पोर्ट्स परसन इस दे विच पार्टिसिपेट करते हैं। इनविक्टियस गेम्स के नाम तो फेमस है। यह ऑर्गेनाइज की जा रही है हेग नीदरलैंड दे विच। पहली बार 2014 दे विच लंडन दे विच ऑर्गेनाइज की गई सी। पहली बार इसनूं 2014 दे विच लंडन दे विच ऑर्गेनाइज किया गया सी।
इस तो इलावा 2023 का एडिशन भी अनाउंस किया जा चुका है। अगले साल यह जर्मनी दे डसलडॉफ एरिया दे विच यह ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इनविक्टियस गेम्स इस साल हेग नीदरलैंड दे विच। ठीक है जी। अच्छा, हेग नीदरलैंड तो अगर याद आए तो हेग नीदरलैंड दे विच हैडकुआटर्स ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैडकुआटर्स ने हेग नीदरलैंड दे विच। अज का सैकेंड क्वेश्चन, हेग नीदरलैंड दे विच किस ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर है? घट्टो घट्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन दसनिया। नेक्स्ट है, इंडिया साइंड 7 MOU अंडर इंडियन ग्रांट असिस्टेंस स्कीम टू इंप्लीमेंट हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एक स्कीम है इंडियन ग्रांट असिस्टेंस स्कीम कि डिफरेंट कंट्रीज़ को ग्रांट दी जाती है ताकि कम्युनिटी को डेवलप किया जा सके। ठीक है जी। रिलेशनस अच्छे रखने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के नाल तकरीबन नेबरिंग कंट्रीज़ के नाल यह किया जाता है। तो इंडिया ने मालदीव्स को ग्रांट दी है, कहांगे 7 प्रोजेक्ट्स के 7 एग्रीमेंट साइन किए गए जिस दे विच मैडिकल सैक्टर के ने एक हॉस्पिटल है उसको डेवलप किया जाएगा, जिस दे विच स्पोर्ट्स सैक्टर के रिलेटेड ने स्पोर्ट्स कंपलैक्स बनाए जाएंगे और कल्चरल सैक्टर के रिलेटेड भी एग्रीमेंट्स। ठीक है जी। एग्रीमेंट्स की डिटेल अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी, ये तकरीबन UPSC के एग्जाम्स के या PPSC के एग्जाम्स के पूछे जाते हैं। अपने लिए याद रखें किन्ने MOU और किस कंट्री के नाल साइन किए गए। इस तो इलावा इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जा सकती है, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नैक्सट है, लैफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कातिया आर्मी चीफ की आप गल करी सी, आर्मी चीफ मनोज पांडे बनाए जाएंगे। मनोज पांडे 30 अप्रैल को बनाए जाएंगे या कह सकते हैं 1 मई को बनाए जाएंगे। ठीक है जी। पुराने आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने रिटायर होंगे और पॉसिबल है कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बना दिता जाएगा। तो मनोज कुमार कातियार ये अलग ने, मनोज कुमार कातियार इन्हों डायरैक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन DGMO डायरैक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन अपॉइंट किया गया। DGMO की पोस्ट होंगी है, यह अपॉइंट किए गए हैं मनोज कुमार काटियार। नेक्स्ट है, फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट स्वामीनारायण अक्षरधाम टेंपल इन गांधीनगर गुजरात। इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम यानी कि किते भी लगाया जा सकता है, एक जगह तो दूसरी जगह तो ईजिली ट्रांसफर किया जा सकता है। इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है जिहड़ा कित्थे लगाया गया है, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेंपल दे विच लगाया गया जो कि गांधीनगर गुजरात दे विच। नेक्स्ट है, साइरस पूनावाला जो कि CMD ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दे CMD ने साइरस पूनावाला जिसका हैडकुआटर पुणे दे विच है। यह रून ग्लोबल हैल्थ केयर लिस्ट नूं टॉप करता, इन्होंने रून ग्लोबल हैल्थ केयर रिच लिस्ट नूं टॉप किया और रिचेस्ट बिलीनियर बन चुके हैं हैल्थ केयर सैक्टर दे विच। वर्ल्ड दे विच रिचेस्ट बिलीनियर बन चुके हैं हैल्थ केयर सैक्टर दे। ठीक है जी। हैल्थ केयर सैक्टर दे रिचेस्ट बिलीनियर बन चुके हैं साइरस पूनावाला। इस तो इलावा वर्ल्ड लैवल दे विच दिलीप सिंह भी सन फार्मासूटिकल्स के हैड ने, यह 5वें नंबर पर। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ कमीशनड इंडियाज़ फर्स्ट 99.99% ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्लांट लगाया गया इंडिया का पहला है जो 99.99% तक
ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा विद कैपेसिटी ऑफ 10 kg पर डे, 10 किलो पर डे। किथे? जोरहाट पंप स्टेशन असम, जोरहाट पंप स्टेशन असम दे विच इसनूं लगाया गया। पायलट प्रोजेक्ट है, इस करके हजे 10 किलो है। हौली हौली अगर ये सक्सैसफुल होंगे तो इसनूं डेवलप किया जाएगा, इंक्रीज़ किया जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड की गल करते हैं, नोएडा के हैडकुआटर है। 1959 दे विच यह बनाई गई सी। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 दे विच बनाई गई सी। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट JNK गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जन निगरानी एप्लीकेशन। JNK गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जन निगरानी एप्लीकेशन टू हेल्प पीपल लॉज कंप्लेंट ऑनलाइन। अपनी कंप्लेंट्स नूं ऑनलाइन लगाने के लिए, ऑनलाइन कह सकते हैं ऐड करने के लिए, ऑनलाइन शो करने के लिए जन निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। कित्थे लॉन्च की गई? जम्मू कश्मीर दे विच। क्वेश्चन इसी तरीके नाल पूछा जाएगा, जम्मू कश्मीर दे विच किहड़ी एप्लीकेशन लॉन्च की गई कंप्लेंट्स लॉन्च करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन निगरानी एप्लीकेशन कित्थे लॉन्च की गई है कंप्लेंट्स नूं लॉन्च करने के। तो आंसर जम्मू कश्मीर है। ठीक है जी, अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन लाइक और शेयर काइंडली जरूर करते रहो, जिथे भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।